Hello dear students, we are studying laws of motion, and in the previous video we had studied about inertial and non-inertial frame. What are inertial frame? Inertial frame were those frames in which the observer remain at rest or in uniform motion. Then the frame of reference is called inertial frame, where Newton's laws of motion are basically applicable. Whereas in case of non-inertial frame, it is defined as when the observer is in the accelerated motion, then that kind of frame is called non-inertial frame where Newton's laws of motion were not applicable. We had also studied about the pseudo force. Pseudo force is the force which basically converts the non-inertial frame into inertial frame so that we can apply Newton's laws of motion in non-inertial frame also. Then we have seen the topic, that is apparent weight of a person in a lift, in a moving lift, that was basically based on inertial and non-inertial frame. Today our topic of discussion is friction. So what do we mean by friction? Friction, when we slide or try to slide a body over a surface, the motion is restricted by a force called frictional force. Suppose here I am having a block of mass m, and if I'll apply a force on this block, and this surface is suppose rough, having some opposition, then whenever we pull any object, we try to pull any body, try to slide any body over a surface, then its motion is restricted. Its motion is restricted by a force called frictional force. Obviously, if there is no friction, then it will be very easy for us to move any object, and we can move that object without any application of force, right? So this is the friction is the only reason why we have to apply the force to pull or push any of the object. Friction is responsible for each and every type of energy consumption. So here friction plays a very important role while solving or dealing the physics applications. So when we apply a force, there will exist a frictional force. There will exist a frictional force, और वो जो frictional force होगी, that frictional force will act in the opposite direction of, it always acts parallel to the contact surface. पहली बात, here there is a surface, and on this surface a block is placed. So this is basically the contact surface. So frictional force will act parallel to the contact surface. It always acts parallel to the contact surface and always opposite to the direction of applied force. So frictional force always acts opposite to the direction of applied force. This is first point. Second point is, it is always parallel to the surface of contact. Surface of contact. So this will be the direction of frictional force. As we had applied the force in right direction, the frictional force will act in the left direction, and the direction will always be parallel to the surface of contact. As we know that friction only occurs when two bodies remain in contact. So it is also called as a contact force, just like normal reaction. As we have seen, this M will exert a force on this surface, and the force will be mg. And this surface
will apply a force, will give a reaction, and this reaction is called normal reaction. So both normal reaction and frictional force are called as contact forces. Contact forces. So we must have understood that what do we mean by friction? Friction is when we slide or try to slide a body over a surface, the motion is restricted by a force called frictional force. We also come to know the direction of frictional force, which is always opposite to the direction of applied force, and it is always parallel to the surface of contact. Next is types of friction. There are basically two types of friction. One is static friction and second one is dynamic friction. See beta, here we have to understand very minutely that what do we mean by static friction and what do we mean by dynamic friction. So first, static friction. When an external force is applied on a body, even after that the body remains stationary, then the force which opposes the motion is called frictional force. Static friction does not have any particular value. It can vary from 0 to maximum value. It is always equal to the applied force on the body. Very important. Applied force on the body parallel to the surface. So let's try to understand what do we mean by static friction. See beta, suppose there is a block of mass m, and this block, on this block I apply a force of 1 Newton, and after the application of 1 Newton of force, this block does not move. Does not move. I applied a 2 Newton force and still it does not move. I applied a force of 5 Newton. This block does not move. So why this block is not moving after the application of force also? Because there exists a frictional force in the opposite direction of applied force. There exists a frictional force opposite to the direction of applied force. So even after the application of force, if the block does not move, the reason the block does not move is the frictional force, and this type of friction is called static friction. This type of friction is called static friction. Most important, how to determine the value of static friction? See, if I'll apply a force of 1 Newton, this block was not moving. Why it is not moving? भाई कोई भी चीज अगर मान लीजिए मुझे इस ब्लॉक को मूव नहीं कराना है, तो जो भी मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई है और जो भी फोर्स मैं इस डायरेक्शन में लगाऊं, ये दोनों फोर्सेस अगर बराबर रहेंगी तो ये ब्लॉक मूव करेगा? नो, द ब्लॉक विल नॉट मूव. विल नॉट मूव. तो सिंपल सी बात, स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब ही यही है कि आप जितनी मर्जी चाहे आपने फोर्स लगाई, लेकिन उसके बाद भी आपका ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है. तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? द रीजन बिहाइंड दिस इज देयर एग्जिस्ट अ फ्रिक्शन एंड दैट फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन. So what will be the value of that static friction? Suppose a person applies a force of 1 Newton, then obviously the frictional force, the value of static friction must be 1 Newton only. Then only the block will remain stationary. If this frictional force will increase from 1 Newton to 2 Newton, then this block will start moving in this direction because force will be 2 minus 1. But what we have to do is we are keeping the block at rest. We are considering that the block is not moving after the application of force also. This kind of thing we see in our day-to-day life. Suppose there is a bag of 100 kgs. And one 6th class boy comes and try to pull this bag. But
he is unable to pull this block, this bag. What is the reason that he is unable to pull this bag? Because ये जिस भी सरफेस के ऊपर रखा हुआ है वहां पर क्या एक्सर्ट हो रही है? फ्रिक्शनल फोर्स. तो जो भी पर्सन आया उसने यहां पर जो भी फोर्स लगाई, सपोज 20 न्यूटन की अगर उसने फोर्स लगाई, तो यहां पर ऑपोजिट डायरेक्शन में कितनी फोर्स लग रही होगी? ऑपोजिट डायरेक्शन में भी 20 न्यूटन फोर्स लग रही होगी. तभी ये जो बैग है, ये बैग हमारा किस पे रहेगा? रेस्ट पर रहेगा. तो जब तक मेरा ब्लॉक मूव नहीं करेगा तब तक जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा उस फ्रिक्शन को हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन. और वही स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा. है कि नहीं? मान लीजिए किसी बंदे ने यहां पर 2 न्यूटन की फोर्स लगाई, तो ऑब्वियस सी बात है 2 न्यूटन की फोर्स इधर लग रही है, तो ऑब्वियस सी बात है 2 न्यूटन की फोर्स ही इधर लग रही होगी. तभी तो ये ब्लॉक मेरा किस पर रहेगा? दिस ब्लॉक विल रिमेन एट रेस्ट. किसी ने 5 न्यूटन की फोर्स लगाई, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स भी कितनी लगनी चाहिए? 5 न्यूटन की लगनी चाहिए. तभी ये ब्लॉक मेरा किस पर रहेगा? रेस्ट पर रहेगा. मान लीजिए किसी ने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई एंड स्टिल द ब्लॉक इज नॉट मूविंग, दैट मींस द फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड is also 10 Newton. So in static condition, in which condition? Static condition. यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? Static condition की बात कर रहे हैं. If the block is not moving, if the block is not moving, that means static friction will be equal to the applied force. That is why static friction is also called as self-adjusting friction. इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन बोलते हैं. Why it is called as self adjusting friction? Because the value of static friction will be equal to the applied force. आप जितनी भी फोर्स लगा रहे हैं और अगर ब्लॉक नहीं मूव कर रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा. अब यहीं पर एक कंडीशन आती है कि ये ब्लॉक किसी ना किसी एक पर्टिकुलर फोर्स पर जाकर तो मूव करना शुरू करेगा, यानी कि द ब्लॉक विल ट्राई टू स्लाइड, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? द ब्लॉक विल टेंड्स टू मूव. एक कंडीशन आएगी, दिस इज द ब्लॉक एम. हमने 5 न्यूटन तक की फोर्स लगा दी थी, सपोज 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, तब भी ये ब्लॉक मूव नहीं किया. लेकिन जैसे ही मैंने यहां पर 15 न्यूटन की फोर्स लगाई, कितने न्यूटन की? फॉर एग्जाम्पल 15 न्यूटन की फोर्स लगाई, द ब्लॉक begins to, or we can say that this block will this block will tend to move. मतलब जब तक मैंने 14.9 न्यूटन मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई थी, कितने न्यूटन? 14.9 न्यूटन. द ब्लॉक वाज नॉट मूविंग, द ब्लॉक वाज नॉट मूविंग. तो सिंपल सी बात, जैसे ही मैंने 15 न्यूटन की फोर्स लगाई, इस ब्लॉक में मुझे हल्की सी हलचल दिखाई दी. एंड दिस 15 न्यूटन फोर्स, जब ब्लॉक हमारा क्या करेगा? जस्ट टेंड्स टू मूव की कंडीशन होगी. मतलब जस्ट बिगिन टू, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जस्ट बिगिन टू मूव. कि अब भैया आप 15 न्यूटन से थोड़ी सी भी ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये ब्लॉक मूव करने लगेगा. सो दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि इससे ज्यादा तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा नहीं, क्योंकि अब तो ब्लॉक क्या करने लगेगा? अब तो ब्लॉक मूव करने लगेगा. तो इस तरीके की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की, उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन. क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन. सो दिस इज बेसिकली द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. कितनी मैक्सिमम फोर्स लगाई जाए कि ये ब्लॉक मेरा मूव ना करे, दैट फोर्स इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन. कितनी मैक्सिमम फोर्स पर ये अपनी पोजीशन को, अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा. तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं एफ मैक्स स्टैटिक विल बी इक्वल टू द मैक्सिमम फोर्स applied
on the block, after which it starts moving, and that is called limiting friction. So what is limiting friction? Limiting friction is nothing but the maximum value of your static friction. ये आपके static friction की क्या है? Static friction की maximum value है. So what is limiting friction? Limiting friction, it is the maximum value of static friction. तो अब यहां पर हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी हमारी फोर्स हुआ करती है, कौन सी फोर्स? हमारी फ्रिक्शनल फोर्स. दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज बेसिकली directly proportional to normal reaction, and to remove the sign of proportionality there is a constant, and this constant is called coefficient of friction. इस constant को हम क्या बोलते हैं? This constant is called coefficient of friction, and this friction will not depends upon normal reaction or the frictional force. Mu s, मतलब सिंपल सी बात, जो भी आपका ये म्यू होगा, ये म्यू आपका ना ही नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, ना ही फ्रिक्शनल फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा. तो इसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी? इट्स वैल्यू विल डिपेंड अपॉन द रफनेस ऑफ द सरफेस एंड द मटेरियल ऑफ द सरफेस. As here we are talking about limiting friction, so this F max of static will be equal to mu s into n. What is mu s? This is a value called as coefficient of static friction. मतलब अगर मुझे limiting friction identify करना होगा तो limiting friction identify करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या आ गया? frictional force का mu s into n. As I just want to tell you, if you need to find any of the friction, there is a formula that is F is equal to mu into n. For static friction, for finding static friction is always equal to the applied force, whereas in case of limiting friction, frictional force will be equal to mu into s. और ये जो mu है बेटा, ये हम लोग experimentally determine करते हैं. एक्सपेरिमेंटली मतलब हम रफनेस ऑफ द सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है एंड द मटेरियल ऑफ द सरफेस के ऊपर डिपेंड करेगा. अगर मुझे म्यू एस आइडेंटिफाई करना है तो म्यू एस को आइडेंटिफाई करने के लिए सरफेस की रफनेस के ऊपर डिपेंड करेगा और मटेरियल ऑफ द सरफेस के ऊपर डिपेंड करेगा. विद द हेल्प ऑफ दीज टू कंपोनेंट्स विल बी एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू. सो this value, this mu does not depends on the mass of the body and the external force applied and area of contact. This mu does not depends upon mass, does not depends upon external force, and it does not depend upon the area of contact. ये इनमें से किसी भी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. ये ना नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, ना आपकी फ्रिक्शनल फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा. म्यू एस एक कांस्टेंट है. व्हाट इज म्यू एस? म्यू एस इज अ कांस्टेंट जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा. तो दिस वाज अबाउट लिमिटिंग फ्रिक्शन. नेक्स्ट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और इसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं. तो व्हाट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन? इफ अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी इज मोर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब जो भी आपके लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है कि भैया 15 न्यूटन तक बॉडी मूव नहीं करेगी, तो अगर 15 न्यूटन तक बॉडी मूव नहीं करेगी तो 15.1 जैसे ही मैंने अप्लाई की द बॉडी बिगिंस टू मूव. तो सिंपल सी बात कि जब आपकी अप्लाइड फोर्स जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाएगी, इन दैट सिचुएशन द बॉडी विल स्टार्ट मूविंग. और बॉडी अगर स्टार्ट करना, मूव करना शुरू कर देगी तो ऑब्वियस सी बात है अब उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी. तो उसी काइनेटिक एनर्जी को देख करके यहां पर हमने उसको नाम क्या दे दिया? काइनेटिक फ्रिक्शन, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमने नाम दे दिया. मतलब if the applied force on the body is greater than or more than the limiting friction, then the body will start sliding in this situation. And a force which opposes the sliding, भाई अब स्लाइड करना अगर शुरू कर दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरी की पूरी फ्रिक्शनल फोर्स खत्म हो गई. देयर विल एग्जिस्ट अ फ्रिक्शनल फोर्स, और वो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी दैट फ्रिक्शनल विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन होगा वहां पर, जो कंटिन्यूअसली लग रहा होगा. दैट इज द ओनली रीजन कि हमारी बाइक है, बाइक हमने स्टार्ट की, स्टार्ट करके हम अपनी बाइक को मूव करा रहे हैं,
मूव कराते टाइम पर भी वी रिक्वायर अ फ्यूल। फ्यूल क्यों चाहिए? टू ओवरकम दिस फ्रिक्शनल फोर्स। अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होती तो एक बार अगर आपने बाइक स्टार्ट कर दी तो वो बाइक आपकी कंटिन्यू मूव करते रहती। टू ओवरकम दिस फ्रिक्शनल फोर्स वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स ऑन दी बॉडी, और उसी फोर्स को अप्लाई करने के लिए वी नीड अ फ्यूल, और वही फ्यूल क्या करेगा, इस काइनेटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करके मुझे क्या दे रहा होता है, मुझे वहां पर मोशन प्रोवाइड कर रहा होता है। बॉडी एक बार स्लाइड करना शुरू हो गई तो काइनेटिक फ्रिक्शन, आपका जो भी काइनेटिक फ्रिक्शन है वो काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट हो जाएगा टिल सरफेस रिमेन्स सेम। ये इंपॉर्टेंट बात है, सरफेस रिमेन्स सेम। अगर सरफेस सेम रहा तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू सेम रहेगी, अदरवाइज काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू सेम नहीं रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल, आई एम ड्राइविंग अ बाइक and I am moving on the road. After moving for 1 kilometer, I found a kacha rasta. In that kacha rasta, the kinetic friction will be different than will differ from the kinetic friction which was acting on the road. तो सिंपल सी बात, अगर मैं रोड पर ही मूव करते रहूंगा, सेम तरीके की रोड है उसी पर अगर मैं मूव करते रहूंगा, इन दैट केस आपका काइनेटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। काइनेटिक फ्रिक्शन को निकालने के लिए भी आपके पास देखो फॉर्मूला क्या है, म्यू इंटू एन। तो सिंपल सी बात ये, आपको फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या याद रखना है, म्यू इंटू एन याद रखना है। स्टैटिक की बात होगी तो म्यू एस इंटू एन हो जाएगा, काइनेटिक की बात होगी तो म्यू के इंटू एन हो जाएगा। ये भी हमेशा जो भी आपका सरफेस ऑफ कांटेक्ट है उसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। मतलब मैं अपने दिमाग में अब एक कंसेप्ट सेट कर लेता हूं दैट फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि यहां पर एक मास m है और मैंने यहां पर 15 न्यूटन की फोर्स लगाई और मैंने यहां पर इसी के ऊपर एक 20 न्यूटन की फोर्स लगा दी। बताइए जरा फ्रिक्शनल फोर्स कहां लगेगी? Frictional force will act in the right direction because this 20 Newton and this 15 Newton will give a resultant of 5 Newton, and this 5 Newton will act in the left direction. So frictional force must act in the opposite direction of the applied force. What is the applied force? The net applied force is 5 Newton. अगर इसी बॉडी के ऊपर 15 न्यूटन की फोर्स अगर मैं लगा देता तो क्या बॉडी मूव करती? बॉडी विल नॉट मूव, और बॉडी अगर मूव नहीं करेगी नो फ्रिक्शन विल एक्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो फ्रिक्शन विल एक्ट। अगर बॉडी मूव करती है तभी फ्रिक्शनल फोर्स लगती है, अदरवाइज फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगती है। मतलब अगर बॉडी को आप मूव कराने की कोशिश करेंगे या फिर उसको मूव करा लेंगे तभी फ्रिक्शनल फोर्स लगती है, अदरवाइज फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगती है। मतलब अगर किसी भी बॉडी के ऊपर नेट अप्लाइड फोर्स अगर जीरो होती है, इन दैट सिचुएशन आपकी जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो फ्रिक्शनल फोर्स आपकी जीरो होगी। Let's see some problem related to these type of friction. Suppose there is a body of mass 10 kg. There is a body of mass 10 kg and the value of this surface coefficient of static friction is given to you as mu s is equal to 0.3 and mu k is equal to suppose 0.25. कैलकुलेट फ्रिक्शनल फोर्स। क्या बोल दिया उसने? यू हैव टू कैलकुलेट फ्रिक्शनल फोर्स, एफ निकालिए। दिस इज फर्स्ट illustration. In this case no force is acting on the block because mg is acting in the downward direction and normal reaction will act in the upward direction. So in vertical direction the block is not moving. Obviously there is no applied force to move this block. If there is no applied force, in this case frictional force will be zero in that case because body is at rest. Illustration 2. सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला। मैंने क्या काम किया, यहां पर मैंने 10 kg की फोर्स लगाई।
10 kg का ब्लॉक रखा और इस ब्लॉक के ऊपर मैंने क्या काम किया, मैंने 20 न्यूटन की फोर्स लगा दी। अब मुझे पता करके बताइए, इसका म्यू एस भी दिया हुआ है आपको, दैट इज 0.3 एंड म्यू के इज ऑल्सो गिवन टू यू, दैट इज 0.25. What I am asking you the frictional force. How we are going to determine the frictional force? To check whether there are two types of friction, one is static friction and one is kinetic friction. Static friction acts when the body will remain stationary after the application of applied force, and second is the kinetic friction, which will act when the body starts moving. So what we have to check, first of all, जब कभी भी आपको ऐसी प्रॉब्लम मिले, check whether block moves or not. ये मूव करेगा या नहीं करेगा। तो इसको चेक करने का क्या तरीका है, इसको चेक करने का तरीका है कि मैं स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लूं। अगर बेटा मैं यहां पर मैक्सिमम वैल्यू निकालूंगा तो दैट विल बी म्यू एस इंटू एन, एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एन ओवर हियर, सी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन mg will act and in the upward direction n will act. So n will be equal to क्या हो जाएगा, यहां पर mg हो जाएगा। तो अगर मैं यहां पर म्यू एस की बात करूं तो म्यू एस कितना दिया हुआ है मुझे, 0.3, और n किसके बराबर है, mg के बराबर है। तो अगर मैं इसको 0.3 इंटू एम की जगह पर मैंने 10 kg रख दिया और g की जगह सपोज मैं वैल्यू अगर 10 ही प्लेस कर रहा हूं तो दिस वैल्यू इज 30 न्यूटन। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ द बॉडी will move only after the applied force is greater than 30 न्यूटन, तभी मूव करेगी। मतलब अगर मैं यहाँ पर इसको 9.8 से भी सॉल्व करता तो 9.8 से सॉल्व करने पर भी ये वैल्यू मुझे कितनी मिलती, अगर मैं यहाँ पर 9.8 रखता तो 29.4 आती। चलो 9.8 ही रखते हैं यहाँ पे वैल्यू। अगर मैं यहाँ पर 9.8 ही वैल्यू रखूँ तो देखो आंसर क्या आएगा, आंसर विल बी, बिकॉज दिस कैलकुलेशन इज इजी, सो दिस इज 29.4 न्यूटन। तो यहाँ पर भी जो हमारी अप्लाइड फोर्स होनी चाहिए, दैट अप्लाइड फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन 29.4 न्यूटन, है कि नहीं। दिस इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन विच दिस बॉडी रिक्वायर्स टू मूव। इस बॉडी को अगर मुझे मूव कराना है तो इस फोर्स से ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि दिस इज द मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कि बॉडी तब तक मूव नहीं करेगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है ये। तो ये कितना मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन दे सकता है रेस्ट पर रहते हुए, रेस्ट पर रहते हुए ये 29.4 न्यूटन का फ्रिक्शन दे सकता है। अगर ये इतने न्यूटन का फ्रिक्शन दे रहा है, यानी कि मैं यहां पर लिख सकता हूं कि एफ मैक्स स्टैटिक जो है वो बड़ा है, बिकॉज योर अप्लाइड फोर्स इज 20 न्यूटन, is greater than 20 Newton, which is your applied force. तो सिंपल सी बात हम यहां पर लिख पाएंगे, the body will not move. यहीं पर अगर तीसरा इलस्ट्रेशन देखूं मैं, कि अगर मान लीजिए there is a block of mass m and I applied this mass m is 10 kg, this mass m is 10 kg and I have applied a force of 30 Newton. म्यू एस मुझे दिया हुआ है 0.3 एंड म्यू के मुझे दिया हुआ है 0.25। तो सिंपल सी बात ये कि अब मुझसे पूछा जा रहा है कि ब्लॉक मूव करेगा या ब्लॉक मूव नहीं करेगा, पहली चीज। और दूसरी चीज पूछी जा रही है व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स, दूसरी चीज मुझसे फ्रिक्शनल फोर्स भी पूछी जा रही है।
तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैंने आपको क्या बताया, चेक वेदर दी ब्लॉक मूव्स और नॉट, उसके लिए क्या फॉर्मूला आपको लगाना है, आपको स्टैटिक फ्रिक्शन पता करना पड़ेगा कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है. दिस वी हैड ऑलरेडी डिटरमाइंड इन द प्रीवियस क्वेश्चन, दैट इज 29.4. तो यहां पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है वो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स 29.4 न्यूटन की लगेगी. दैट मींस द ब्लॉक विल मूव. अगर ब्लॉक मूव करेगा 29.4 इसका मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया. मतलब सिंपल सी बात, अब ब्लॉक मूव करेगा, अगर ब्लॉक मूव करेगा मतलब अब इसमें कौन सा फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा. और अगर ये काइनेटिक फ्रिक्शन होगा तो मैं इसको क्या लिख पाऊंगा, म्यू के इंटू एन. म्यू के की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 0.25, और एन की वैल्यू कितनी है, 10 इंटू 9.8. So the frictional force which is acting on the body will be equal to 24.5 न्यूटन. यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स कितनी होगी, इस वाले क्वेश्चन में फ्रिक्शनल फोर्स कितनी होगी, यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स विल बी 20 न्यूटन, बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इक्वल टू अप्लाइड फोर्स होगी. अप्लाइड फोर्स क्यों होगी, बिकॉज द ब्लॉक इज नॉट मूविंग, block will is not moving, body is not moving. In that case frictional force will be equal to applied force. तो यहां पर जो हमें म्यू एस दिया गया है, दिस इज बेसिकली टू फाइंड वेदर द ब्लॉक विल मूव और नॉट. तो ये हमें चेक करने का तरीका पता चल गया. अगर ब्लॉक मेरा रेस्ट पर है, कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं है, इन दैट केस फ्रिक्शनल फोर्स विल बी जीरो. हमें ये तीनों के तीनों केसेस बहुत अच्छे से समझ में आ गए. तो यहां पर आपको यही तीन तरीके के फ्रिक्शंस आपको ध्यान में रखने हैं. अगली जो दो चीजें हैं वो है यहां पर, एक है आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन और दूसरा है आपका एंगल ऑफ रिपोज. सो व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन. सबसे पहली बात, इन द लिमिटिंग कंडीशन, व्हाट डू वी मीन बाय लिमिटिंग कंडीशन ओवर हियर. लिमिटिंग कंडीशन का यहां पर क्या मतलब है, लिमिटिंग कंडीशन मीन्स the body will tends to move or try to move या फिर just begin to move. मतलब कौन सी कंडीशन हो गई ये, लिमिटिंग फ्रिक्शन की कंडीशन हो गई. कि लिमिटिंग फ्रिक्शन वाली कंडीशन कौन सी होती है, कि द बॉडी अब इससे थोड़ी सी भी ज्यादा फोर्स लगा दी तो बॉडी क्या करने लगेगी, मूव करने लगेगी. तो अगर हम यहां पर लिमिटिंग कंडीशन की बात करें, कैसी कंडीशन की बात करें हम लोग, लिमिटिंग कंडीशन की. तो लिमिटिंग कंडीशन के केस में क्या होगा, ये एक ब्लॉक है m मास का जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है. नीचे की डायरेक्शन में क्या लगेगा, mg. ऊपर की डायरेक्शन में क्या लगेगा, आपका नॉर्मल रिएक्शन, ऐसे ही लगेगा. सिंपल सी बात, देयर इज अ अप्लाइड फोर्स जो हमने F मानी हुई है, और यहीं पर मुझे एक फ्रिक्शनल फोर्स अपीयर होगी, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में. और ये मेरी जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी, ये Fs स्टैटिक फ्रिक्शन की कैसी वैल्यू होगी, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी. सो व्हाट इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन. एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज defined as, in the limiting condition of the body, the angle between the resultant contact forces and the normal reaction. It is defined as, in the limiting condition of the body, the angle between the resultant contact forces. What are the resultant contact forces? This normal is the contact force which always acts perpendicular, and this is also a constant contact force which always act parallel to the surface. If I'll find the resultant of these two, that means इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट होगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा. ये देखो, इन दोनों वेक्टर्स को मैंने ज्वाइन करा लिया, रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में होगा. तो ये रिजल्टेंट आ गया मेरे पास, किस किस का,
ये रिजल्टेंट है। अब देखो बेटा, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है और दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज बोथ आर फोर्सेस। तो एफ एस स्क्वायर यही होगा इनका रिजल्टेंट। तो ये जो एंगल बनेगा, सॉरी, ये जो एंगल बनेगा किस किस के बीच में, नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। तो सिंपल सी बात, ये एक ट्रायंगल बन गया बेटा, दिस इज एन, ये यहां पर एक रिजल्टेंट और यहां पर ये क्या लग रही होगी, एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रही होगी। तो ये एक ट्रायंगल बन गया विद एंगल थीटा। तो इसकी वैल्यू तो है एन और इसकी वैल्यू है एफ, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं, tan थीटा विल बी इक्वल टू एफ एस अपॉन एन के बराबर होगा, है कि नहीं। दोबारा से ध्यान रखिए बेटा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ द कांटेक्ट फोर्सेस, इन दोनों कांटेक्ट फोर्स का जो रिजल्टेंट है, एंड द नॉर्मल रिएक्शन। एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ द कांटेक्ट फोर्सेस, इन दोनों कांटेक्ट फोर्स का रिजल्टेंट ये आया, और नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनेगा, दिस एंगल इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सो ऑब्वियसली बाय ट्रायंगल लॉ अगर हम देखें तो यहां पर अगर मैं इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूं तो एक पैरेललोग्राम लॉ बन रहा है। तो यानी कि मैं यहां पर अगर मैं कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश करूं तो ऑब्वियस सी बात है, इसको अगर मुझे ट्रायंगल लॉ बनाना है तो इसी तरीके से बनेगा ये ट्रायंगल लॉ। तो अगर ये एफ एस है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी एफ एस होगा, तो वही मैंने यहाँ पर इसको एफ एस बनाया है। तो इसी को एफ एस अपॉन एन, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, म्यू एस इंटू एन अपॉन एन, this will be tan theta. So n and n will get cancel out, so tan theta will be equal to mu s, मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन का टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर होता है, ये ध्यान रखेंगे आप। देयर इज वन मोर टाइप ऑफ एंगल इन, एंड दैट एंगल इज एंगल ऑफ रिपोज। अगर कोई भी बॉडी एक इंक्लाइंड प्लेन पर रखी है, तो सिंपल सी बात, अगर मान लीजिए कोई भी बॉडी को अगर मैंने बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे रखा है, तो फ्लैट सरफेस पे रखा है तो बॉडी मूव नहीं करेगी। मैंने एंगल 5 डिग्री बढ़ाया, बॉडी अब भी मूव नहीं कर रही है। मैंने 10 डिग्री एंगल बढ़ा दिया, अब भी मूव नहीं कर रही है। मैंने 15 डिग्री एंगल बढ़ा दिया, अब भी बॉडी नहीं मूव कर रही है। मैंने 20 डिग्री एंगल बढ़ा दिया, अब भी मूव नहीं कर रही है। मैंने 30 डिग्री एंगल किया और बॉडी बिगिंस टू, जस्ट बिगिन टू स्लाइड वाली कंडीशन हो गई। मतलब यहां पर भी जो हम बात करेंगे वो लिमिटिंग कंडीशन की बात करेंगे। तो दिस एंगल इज थीटा। तो वो एंगल जिस एंगल पर, जिस इंक्लाइंड एंगल पर बॉडी क्या करने लगेगी, मूव करने लगेगी, जस्ट बिगिन टू स्लाइड करने लगेगी, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, एंगल ऑफ रिपोज। अब ये एंगल थीटा है, तो ऑब्वियस सी बात, अगर इस ब्लॉक का मास m है तो एक फोर्स लग रही होगी बिल्कुल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और वो फोर्स कौन सी होगी, mg। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस m कैन बी ब्रोकन इनटू टू कंपोनेंट्स, one is mg cos theta and another one will be mg sin theta. There will be a normal reaction which is acting in the upward direction, जो कि बिल्कुल परपेंडिकुलर टू दी सरफेस हुआ करता है। मतलब ये हमारा सरफेस है, इसके हमेशा नॉर्मल रिएक्शन क्या रहना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो mg cos थीटा जो है ये सरफेस के परपेंडिकुलर है, यानी कि यहां से वैल्यू क्या निकल कर आई, n इज इक्वल टू mg cos थीटा निकल कर आ गया, ऐसे ही निकल कर आया। और यहां पर एक ऑपोजिट डायरेक्शन में जो इसको रोक रहा था, वो यहां पर एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रही होगी, और वो कितनी होगी, म्यू एस इंटू एन के बराबर, क्योंकि यहां पर आपको स्टैटिक फ्रिक्शन की कंडीशन अप्लाई करनी है, और वो भी लिमिटिंग कंडीशन अप्लाई करनी है। यानी कि ये जस्ट बिगिन टू स्लाइड वाली कंडीशन है, मतलब अभी मूव करना शुरू नहीं किया है, इट विल स्टार्ट मूविंग। यानी कि ये दोनों वैल्यूज अभी भी क्या हैं, बराबर हैं। यानी कि म्यू एस इंटू एन इज इक्वल टू क्या होगा, एम जी साइन थीटा, बिकॉज
condition is just begin to slide, just begin to slide वाली कंडीशन है। और अगर जस्ट बिगिन टू स्लाइड वाली कंडीशन है तो म्यू एस इंटू इसको मैं क्या लिख दूंगा, एम जी कॉस थीटा, एंड दिस विल बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा। सो एम जी विल गेट कैंसिल आउट, सो टेन थीटा विल बी इक्वल टू म्यू एस। वेरी गुड। मतलब अगर इंक्लाइंड प्लेन की बात होगी तो एंगल ऑफ रिपोज आएगा, और एंगल ऑफ रिपोज का टेंजेंट जो होगा वो म्यू एस के बराबर होगा। और अगर फ्लैट सरफेस की बात होगी तो वहां पर एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा, जो किस किस के बीच में होता है, रिजल्टेंट ऑफ द कांटेक्ट फोर्स एंड द नॉर्मल रिएक्शन के बीच में बनने वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं बेटा, हम उसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, और ये दोनों ही एंगल्स जो हैं ये आपके लिमिटिंग कंडीशन में चेक होते हैं। कैसी कंडीशन में चेक होंगे ये, लिमिटिंग कंडीशन में चेक होते हैं। क्लियर हो गई बात। तो दिस इज द कंसेप्ट which we must understand, that what is friction, how many types of friction are there, what are the roles of friction, what is angle of friction, and what is angle of repose. I hope आज की वीडियो आपको अच्छी समझ में आई होगी। So thank you so much and God bless you all.